A very good evening, everyone. I am Sushmita and I will be your anchor for this winter school training program. On behalf of Vital Biotech, Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur, University of Agricultural Sciences, Raichur, Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, and Farmers Park, Hyderabad, Telangana. I cordially welcome you all to this 21 days winter school training on fostering environmental sustainability through food security, agricultural, and modern science innovations. Vital Biotech is India's leading publication, research, and training institute whose goal is to tackle the world's most pressing problems related to food and agriculture. Whereas the Agricultural Forum for Technical Education of Farming Society Kota serves as a spiracle between the network of rural communities in India and other states and ensure service Dharwad in Karnataka. With the establishment of USA Dharwad in 1986, Raichur still had the privilege of being the second largest campus and a major hub of education in this region. Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, established in June 2012 and has nearly 95 government and private colleges affiliated in four districts of Chhattisgarh state, which together constitute the jurisdiction of ABV. The university plans to develop a strategy for enhancing the range of educational approaches and the use of technology. As a part of this approach, the university plans to start classroom into state-of-the-art ones, enabling teachers to teach using a wide variety of media. Farmers Park is a platform committed to empowering organic and natural farmers across India by providing farm advisories services, free soil testing, and marketing support. It aims to promote sustainable farming practices, helping farmers maximize their yield while protecting the environment. Through their services, they strive to create a strong, eco conscious agricultural community nationwide. I cordially welcome to our esteemed speaker of the day, Praval Singh, Praval Pratap Singh Verma, Senior Technical Officer at CSIR Institute of Medicine and Aromatic Plant Research Center, Purara, Bhageshwar, Uttarakhand. Sir is a dedicated professional with a BSc in Agriculture from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra, and MSc in Horticulture from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. Mr. Verma has recently completed research work on a PhD in horticulture from Integral University, Lucknow. With a notable focus on medicinal and aromatic plants in the high altitude region of Western Himalayas, he has made significant contribution to agricultural technology. Mr. Verma's expertise span research in crop improvement, production, protection, and processing of MAPs. His efforts have resulted in standardization of nursery technique for various plants, including oregano, rosemary, thyme, chamomile, lemon balm, lemongrass, pyrethrum, mint, and geranium. And he has played a crucial role in enhancing herbs cultivation in Uttarakhand. Through his extensive publication, including 40 research papers, 5 review papers, and 8 book chapters, Mr. Verma has contributed substantially to academic disclosure in his field. His active participation in scientific events has earned him recognition, including 4 awards, namely the Best Poster Presentation Award, Young Researcher Award, and 2 Young Scientist Award at different national and international conferences, acknowledging his outstanding contribution. Additionally, Sir has edited 2 books and prepared 3 training manuals, furthering the dissemination of knowledge in agricultural research. Mr. Verma has given 6 oral presentations in national and international seminars and conferences and has delivered 22 lectures in training programs and workshops.
Moreover, he has published more than 100 popular articles in both Hindi and English in popular agricultural magazines and newspapers, sharing his expertise and contributing to the advancement of agricultural practices. In his current role, he oversees diverse activities, continually disseminating MAP's technology and advances agricultural research. Respected sir, your remarkable achievements defy descriptions, leaving us speechless and deeply inspired. So, without further ado, I warmly welcome you and gratefully hand over this winter school virtual stage to you. Over to you, sir. Uh, am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Sorry. Good evening. Good evening. Viewers. And having and aromatic and and full Mehta sir, that a F society to see the opportunity to deliver one day's winter is training in Sir, environmental voice is breaking, sir. sustainability of security. Sir, voice is breaking. Am, am, am Hello. I, Due to network issue, let's wait for some minutes. अभी हो गया है ठीक है am I audible sir sorry for disturbance Audible, sir. Audible. sorry uh, uh, First of all, I'm very thankful to Dr. Jiten Mehta sir, Director, Vital Group and AFT B Society, uh, to giving me the opportunity to deliver the lecture in 21 days winter school training on fostering environmental sustainability through food security, agriculture, and modern science innovation. Now I'm giving my presentation on
medicinal and aromatic plant cultivation, modern agro technology, and post harvest management. In this presentation, I am discussing about pre and post harvest management of medicinal and aromatic plants. First of all, I am talking about what is medicinal and aromatic plant. If we talk about medicinal plant have a bioactive compound, and these medicine plant are used Sir, to bilingual for mode. Sir, kindly bilingual mode. बिल्कुल बिल्कुल Because बिल्कुल सर। ये जो मेडिसिन प्लांट्स होते हैं, इनको जो इनका यूज है, इनमें जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, इनका यूज डिफरेंट टाइप की जो मेडिसिन आयुर्वेदा इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है, इसके क्रूड मटेरियल का यूज करके बहुत सारी मेडिसिन आजकल बनाई जा रही हैं। तो ये इसे हम कह सकते हैं मेडिसिन प्लांट। बेसिकली इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स होता है, और ये कंपाउंड इसके मेडिसिन प्लांट के ऑयल में पाया जाता है। अभी अगर हम बात करें एरोमेटिक प्लांट्स की, तो एरोमेटिक प्लांट्स में ऑयल होता है, और ये जो ऑयल होता है इसमें बहुत मेजर अमाउंट में पाया जाता है, और ये डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेडिसिन प्लांट को हम। इसमें जो ऑयल होता है इसमें एरोमा बहुत अच्छी होती है। तो जो ऑयल होता है मेडिसिन प्लांट में भी हो सकता है, मगर उसमें एरोमा जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेडिसिन प्लांट और एरोमेटिक प्लांट को। और ये जो फ्रेग्रेंस जो होती है इस ऑयल में, इसका यूज आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो करती है, इसके साथ परफ्यूम इंडस्ट्री भी इसका यूज करती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ऑयल का यूज करती हैं, culinary जो हर्ब्स जितनी भी हैं जो एरोमेटिक प्लांट्स में पाई जा रही हैं, इसी में कैटेगरी में जो पाई जाती हैं, तो इसका यूज जो है आपका बहुत सारी अलग अलग डिशेज को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए इन प्लांट्स का यूज किया जाता है। अ, अब अगर हम बात करें, इसमें जो ऑयल पाया जाता है मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट में, ये वॉलेटाइल नेचर का ऑयल होता है। और इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका लेमन ग्रास की, अगर हम बात करें तो इसमें लिनालूल होता है। तुलसी की अगर हम बात करें, इसमें यूजिनॉल होता है। तो जितनी भी ये जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट जो होते हैं, इसमें जो वैल्यू होती है इन प्लांट्स की, इसमें पाए जाने वाला जो कंपाउंड्स होते हैं, तो इन्हीं की वजह से इसकी वैल्यू होती है। तो इसकी इसी को हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, दीज आर द यूजेस ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। फर्स्ट वन इज culinary uses, second one is medicinal uses, third is aromatic uses, fourth is ornamental use, and last is uh, आपका ornamental uses। अगर हम बात करें इनकी मैप्स की जो इमेजेस हैं, इसमें ये आप देख रहे होंगे स्लाइड में, आप रोजमेरी आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें आपको, और इसमें आपको लेमन ग्रास दिखाई दे रहा है, ऑरिगेनो दिखाई दे रहा है, थाइम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें देखिए मेजोराना है, लेमन बाम है। दीज आर द इमेजेस ऑफ स्पीयरमिंट, कैमोमाइल, बेसिल, सेलरी, पार्सले। अगर हम बात करें रोजमेरी की, तो ये पूरी जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैं जो फोकस करने वाला हूँ, हम एक्चुअली हिली एरिया में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हिली एरिया में टेम्परेट रीजन में जो प्लांट ग्रो हो सकते हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, उसमें हम लोग जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, रोजमेरी एक प्लांट है आपका, जिरेनियम एक प्लांट है, दमस्क रोज पे हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, ऑरिगेनो पे, कैमोमाइल पे, थाइम पे, ऑरिगेनो, और इसके अलावा मर्जोरम, ऐसे कुछ प्लांट हैं जिन पे हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं। और ये जितने भी प्लांट हैं मैदानी इलाकों में, हमारे इंडिया में प्लेन्स एरिया में ग्रो नहीं हो सकते हैं ये प्लांट। और ये जितनी भी ये प्लांट हैं, इनका हमारे इंडिया में यूज अभी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक दशक से इसका यूज लगातार बढ़ रहा है। रीजन ये है कि अभी इंटरनेट का टाइम आ गया है, कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि डिमांड इसकी बढ़ रही है। डिमांड इसलिए बढ़ रही है कि इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, जो कि यूजर है उन्हें पता पड़ पा रहा है कि ये
हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, या कलिनरी एप्लीकेशन है उसका, तो फूड को अच्छी अरोमा देने के लिए या अच्छा फ्लेवर देने के लिए इनका यूज है। इसकी हर्बल चाय बनाई जा सकती है। अभी जैसे बात करें, जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इसमें रोजमेरी एक प्लांट है। आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में ममा अर्थ एक ब्रांड है, इसके अलावा वाओ एक ब्रांड है, या फिर बहुत सारी जितनी भी ये कॉस्मेटिक रेंज जो निकालती हैं इंडस्ट्रीज, उसमें आपका ऑयल है, शैम्पू है, साबुन है, फेस क्रीम है, तो उसमें आप देखेंगे कि रोजमेरी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, रोजमेरी का यूज किया जा रहा है। रोजमेरी वाटर अवेलेबल है मार्केट में, रोजमेरी ऑयल अवेलेबल है मार्केट में। रोजमेरी का जो यूज है हेयर ऑयल का, उसमें ऐसा, इसका जो हेल्थ बेनिफिट है उसमें यह है कि आपका एरोमा तो इसमें है ही, इसके अलावा जो इसका यूज है बालों में डैंड्रफ को दूर करने के लिए, बालों को काला करने के लिए, इवन गंजापन दूर करने के लिए बहुत सारी मेडिकेटेड ऑयल जो मार्केट में अवेलेबल है। इसका रोज मेरी वाटर जो अवेलेबल है वो स्किन को अच्छा ग्लो करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर। लेमन ग्रास का ही लेमन ग्रास ऑयल हाइड्रोसोल जो है मार्केट में अवेलेबल है। रोजमेरी की जैसे लीफ की अगर हम बात करें, फ्रेश लीफ तो कंज्यूम की जाती है, इसके अलावा ड्राई लीफ की हर्बल चाय बनाई जा रही है। हर्बल चाय जो मार्केट में अवेलेबल है, वजह मैंने बताई कि इंटरनेट पे ये बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यूजर देख रहे हैं, डिमांड इसकी इसीलिए बढ़ रही है। तो हिली एरिया में ही ये सारे प्लांट लगाए जा सकते हैं बेसिकली, जिनकी मैं आज अभी बात करूंगा। ऑरिगेनो एक प्लांट है, अभी सी मैप रीजनल से सेंटर जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं, वहाँ पे ऑरिगेनो की पहली वैरायटी की एग्रो टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने काम किया हुआ है। और पहली वैरायटी सिम सुदीक्षा हम लोगों ने डेवलप की हुई है, इंडिया की पहली वैरायटी है। अभी तक जो इंडिया में जितना भी कंजप्शन हो रहा है ऑरिगेनो का, ऑरिगेनो बेसिकली पिज्जा हर्ब के नाम से इसे जानते हैं। इंडिया में जितना भी है यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करके यहाँ पे लाया जाता है। अभी हम लोगों ने वर्क स्टार्ट किया इसमें, और हम लोग की कोशिश है कि जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हैं इंडिया में, हिली एरिया में जहाँ पे न्यों उगाया जा सकता है, वहाँ पे हम लोग इसे ग्रो करने के लिए किसानों से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैरायटी रिलीज कर ली है। शिमशुदीक्षा है इसका नाम। थाइम का भी यूज पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी में किया जा रहा है। इसका यूज एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए, इटालियन डिशेज में अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसकी ड्राई पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही आप मान के चलिए कि रोजमेरी का है, और वैसे ही आपका और भी बहुत सारे हैं प्लांट। मर्जोरम जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मर्जोरम का जो इस्तेमाल है, बहुत वैल्यूबल हर्बल चाय इससे बनाई जाती है। तो इस ये लेमन बाम है, जैसे लेमन बाम आपको इसमें होगा। लेमन बाम का जो इस्तेमाल है, इसकी पत्ती को सुखा के हर्बल चाय बनाई जाती है। नींबू जैसी इसमें खुशबू रहती है, इसमें सिट्रॉल, लिनालूल, कैम्फोर रहता है, एकदम लेमनी इसमें अरोमा रहती है, नींबू की तरह इसमें आती है खुशबू। इसकी हर्बल चाय पीने से आपको डिप्रेशन है, अगर मेमोरी किसी की ठीक नहीं है, और अवसाद में अगर कोई है, तो इस तरीके का हर्बल चाय बना के अगर पीते हैं तो बहुत अच्छा इसका बेनिफिट्स है। तो अभी ये है कि इन प्लांट्स की डिमांड बढ़ रही है। जैसे लेमन ग्रास तो बहुत पहले से सीमैप इसका कल्टीवेशन है और वैरायटी डेवलप कर चुका है मैदानी इलाकों के लिए। पर इसके अलावा ये जो प्लांट हैं हम लोगों के लिए नए हैं, जैसे थाइम है, रोजमेरी है, ऑरिगेनो है, लेमन बाम है, मर्जोरम है। तो इन प्लांट्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी डिमांड बढ़ रही है। और इन डिमांड को पूरा करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, जिन कंट्रीज में ये कल्टीवेशन हो रहा है, वहां से इंपोर्ट करके मंगाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 95 97 6% आपका ओरिगेनो बाहर से आता है, यूरोपियन कंट्री से आता है। वैसे ही रोजमेरी का ऑयल और रोजमेरी की सूखी पत्ती, वो भी इंडिया में। थाइम जो है इंडिया में, मर्जोरम, लेमन बाम, ये सब फॉरेन कंट्री से ही इंडिया में इंपोर्ट होके आ रहा है। तो हम लोग अभी उत्तराखंड में हमारा जो सेंटर है बहुत अच्छे से इन पे वर्क कर रहा है। इनकी वैरायटी धीरे धीरे अभी रिलीज होगी। है दिखाई दे रहा है। जो है
Sorry for the issue, participants. Speaker is facing some network problems, so we will wait. Our speaker has joined again. कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे लगता है। जी सर। स्क्रीन दिख रही है सर? Yes, sir. मैडम ये स्क्रीन शो हो रही है। हाँ, मैं सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहा था। सैलरी बेसिकली इसका सीड, स्टेम और इसका जो लीफ है ड्राई फॉर्म में और फ्रेश फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। जितनी भी होटल इंडस्ट्री है सैलरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसकी जो जो इसका जो एरिया है आपका लुधियाना, पंजाब में जो एरिया है लुधियाना, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है। इसी तरीके से स्पीयरमिंट है। स्पीयरमिंट की अगर हम बात करें पहाड़ों पे इसका कल्टीवेशन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और इसकी स्पीयरमिंट टी आप अगर गूगल पे थोड़ा देखेंगे तो पता पड़ेगा। स्पीयरमिंट की जो हर्बल टी है बहुत अच्छे से इसका मार्केट में अवेलेबल है और बहुत अच्छे दामों पे बिक रही है। और किसान जो हिली एरिया में स्पीयरमिंट ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे से उन्हें इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी हुई है। प्लेन्स से कंपेयर करें अगर हम स्पीयरमिंट का तो हिली एरिया में बहुत अच्छा इसका ऑयल परसेंटेज इसमें बहुत अच्छा रहता है और एरोमा बहुत अच्छी इसमें होती है। तो ये कह सकते हैं कि स्पेरमिंट पहाड़ों पे अगर हम ग्रो करते हैं यहाँ पे तो बहुत वैल्यूएबल क्वालिटी की ड्राई हर्ब हमको मिलती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का हर्बल चाय बनाया जा सकता है। आपको ये ऊपर आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा कैमोमाइल। कैमोमाइल का जो फ्लावर है ये आपको येलो व्हाइट कलर का जो फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसमें पेटल्स दिख रही व्हाइट कलर की। एस्ट्रेसी फैमिली का ये होता है प्लांट। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का ये प्लांट है। इसमें इसकी फूल को सुखा के कैमोमाइल टी बनाई जा रही है। इसमें ब्लू कलर का ऑयल निकलता है जब हम डिस्टिलेशन करते हैं इसका। बेसिल है, पार्सले है, डिल है, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनके बारे में डिस्कस करूंगा। दीज आर द information of annual category plants like spearmint, chamomile, basil and celery। ये जितने भी प्लांट अभी मैंने आपको बताए ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट है हमारे, मतलब एनुअल नेचर के हैं, 2 से ढाई महीने में ग्रो हो जाते हैं। अभी मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में ये इशू रहता है कुछ किसानों को। जब हम यहाँ पे उत्तराखंड में हम टारगेट कर रहे हैं मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट को ऐसे एरिया में, यहाँ पे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बंदरों की वजह से खेती छोड़ चुके हैं किसान। माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, मैन पावर नहीं है, सब्जियों के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है इजिली। रेनफेड फार्मिंग होती है 70 से 80% एरिया पे। तो यहाँ पे जितना भी लैंड खाली पड़ा हुआ है, बैरन लैंड जो है, उसके लिए हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट और हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम के द्वारा यहाँ पे कल्टीवेशन कराना स्टार्ट किया है। तो अब हम जब पहुंचते हैं इन किसानों के पास या किसान हमारे पास आते हैं तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का इशू थोड़ा ये रहता है कि ये ज्यादातर प्लांट जितने भी टिपिकली हमारे अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, सतावर है, सफेद मूसली है, ग्रासेस जितनी भी हैं, सिट्रोनेला है, तो इसमें ये इशू रहता है। ये पहली जो कटाई है इसकी थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है। ये मान के चलिए कि 7 से 8 9 महीने, करीब 12 महीने लगते हैं। तो ये जितनी भी समस्याएं थी उसको देखते हुए अभी किसानों की डिमांड ये थी कि ऐसे कुछ पौधे जो इजीली आपका लगाए जा सके और 2.5 से 3 महीने में हमें कटाई हार्वेस्ट मिल जाए पहला। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑरिगेनो की कल्टीवेशन स्टार्ट कराई, वो भी आपका शॉर्ट ड्यूरेशन है। सैलरी जैसे है, बेसिल है, कैमोमाइल है, मिंट की बहुत सारी स्पीसीज हैं, थाइम है। तो जो आपके पेरेनियल नेचर के प्लांट हैं उसे तो हम एनुअल ले ही सकते हैं। साथ साथ में एनुअल प्लांट भी हम लोगों ने कुछ यहाँ के लिए, इस एरिया के लिए देखे हुए हैं जिसे आसानी से उगाया जा सकता है। स्पेयरमिंट की मैं बात कर रहा था, इसे यहाँ पे जनवरी में आपका इसका नर्सरी तैयार करना होता है और मिड फरवरी तक प्लांटिंग कर देनी होती है। और ये मान के चलिए कि मई जून तक आप इसकी कटाई कर सकते हैं। कैमोमाइल का भी अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नर्सरी इसकी डालना, और उसका ये मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक ये आपका कटाई इसमें हमें मिल जाती है फ्लावर की। और इसकी जो कटाई है अल्टरनेट आपका तीसरे दिन हर अल्टरनेट डे पे करना होता है और 1 मंथ तक इसकी कटाई करनी होती है। बेसिल जो ये हर्ब है, बेसिल की जो हर्ब है, हर्बल चाय बनाई जा रही है इसकी। इसके अलावा इटालियन जितनी भी डिश है उसमें एक फूड एंड फ्लेवरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जितना भी मोस्टली जो कल्टीवेशन है वो हम लोग यहाँ पहाड़ों पे एनुअल या पेरेनियल नेचर के जितने भी प्लांट हैं उसकी जो नर्सरी है
आपका पाला यहाँ पे गिरता है बहुत ज्यादा, तो वो पाला गिरने के बाद ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये मान के चलिए कि फरवरी में हम इसे यहाँ पे, फरवरी तक पाला रहता है, तो एंड वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हम लोग यहाँ पे नर्सरी प्रिपरेशन या फिर प्लांटिंग करते हैं। तो इसका जो प्रोपोगेशन है, जैसे सैलरी है उसका बीज से प्रोपोगेशन किया जाता है, बेसिल का भी बीज से किया जाएगा, कैमोमाइल का भी बीज से किया जाता है, और जो मिंट की जितनी प्रजातियां हैं, मेंथा आर्वेंसिस है, मेंथा पिपरेटा है, मेंथा स्पाइकेटा है, ये जितने भी हैं सकर से कल्टीवेशन इनका किया जाता है। सकर को चॉप करके इसकी नर्सरी बनाई जा रही है, नर्सरी बना के जो प्लांट आपका सैपलिंग तैयार होगा उसे फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं फील्ड में, तो डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है विदाउट मेकिंग नर्सरी। उसके लिए सीधा आपको चॉप करना है, और चॉप करने के बाद सकर को फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देना होता है। प्लांटिंग इसकी डायरेक्टली भी करी जा रही है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है पेरेनियल नेचर की जो प्लांट हैं हमारे हिली एरिया में। मैंने बताया कि अभी सर्दियां बहुत ज्यादा है, कुछ एरिया में पाला गिर रहा है और कुछ एरिया में स्नोफॉल हो रहा है। तो ये अभी जो स्नोफॉल है फरवरी में जाके खत्म होगा। उसके बाद ये मान के चलिए कि मार्च से ब्लूम टाइम जो स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ईयर जब आपने प्लांट लगा दिया है, सेकेंड ईयर से आप देखेंगे उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है, एक साल तक हमें वेट करना होता है। उसके बाद सेकेंड ईयर, ये जो पाला वाला जो फेज होता है उसमें हमें प्लांट को थोड़ा सा बचा के रखना होता है। तो मार्च से आपका ये ब्लूम टाइम स्टार्ट होगा, और पहली कटाई आपको 2-2.5 महीने में मिल जाएगी। उसके बाद 2-2.5 महीने बाद फिर आप दूसरी कटाई ले सकते हैं, और बहुत अच्छी केयर करते हैं अगर, तो तीसरी कटाई भी इसमें मिल जाती है। तो कुछ किसान, जैसे यहाँ पे हम किसान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है खेती के लिए, तो जो इंटरेस्टेड फार्मर है वो बहुत अच्छी केयर अगर कर लेते हैं, 3 कटाई तक इन प्लांट्स में ले सकते हैं। कौन कौन से हैं वो प्लांट, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने मेंशन किया हुआ है, रोजमेरी है, लेमन ग्रास है, ऑरिगेनो, थाइम, मर्जोरम, लेमन बाम। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरी है अलग अलग प्लांट्स की। तो 3 कटाई तक इसमें आसानी से मिल जाती है। अब हम जब किसानों से कांटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, स्कैटर लैंड है, फैली हुई है लैंड, कंटूर फार्मिंग हो रही है, लैंड का जो साइज है छोटा है। किसान अगर ग्रुप में जब खेती करते हैं, तो हम सजेशन देते हैं कि ये जितने भी प्लांट हैं, आप अगर ग्रुप में लगा रहे हैं, एक ही लैंड पे लगा रहे हैं, कम से कम मिनिमम 1 हेक्टेयर है, तो आप ऑयल कल्टीवेशन, ऑयल के लिए आप इसका कल्टीवेशन करिए। और अगर वो नहीं हो पाता है, तो हम लोग कोशिश ये रहती है कि अगर स्कैटर लैंड है, छोटे छोटे एरिया में किसान अगर खेती कर रहे हैं, तो ड्राई हर्ब का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। जैसे रोजमेरी, ड्राई हर्ब, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ऑयल की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। लेमन ग्रास का भी आप ड्राई हर्ब और ऑयल दोनों कर सकते हैं। सेम यही ऑरिगेनो का है, थाइम का है, मर्जोरम का है, लेमन बाम का है। तो इसके बाद ये मान के चलिए कि सर्दी से पहले पहले आपको तीसरी कटाई इसकी फिर से ले लेनी होती है। सर्दी में इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पाला जब गिरता है, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि पाले को सहने की जो शक्ति होती है इनकी, कुछ जो प्लांट हैं इनकी होती है, कुछ प्लांट हैं जो पाला के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहते हैं, और उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें हमें क्या करना होता है, ये कुछ टेम्परेचर रेंज है। जैसे आपका 13 डिग्री से नीचे अगर स्पेयरमेंट जाएगा, तो ये मान के चलिए कि मदर प्लांट आपका फील्ड में नहीं बचेगा, उसके लिए आपको उसे प्रोटेक्ट करना रहेगा। लेमन बाम है, जैसे 10 डिग्री से नीचे अगर जाता है। टाइम है 15 डिग्री से नीचे। आप देख रहे होंगे लेमन ग्रास जो है 10 डिग्री से नीचे, 10 से 40 तक, तो 40 है अगर, तो आप देखिए मैदानी एरिया में से आसानी से उगाया जा सकता है। और 10 डिग्री से नीचे जाता है तभी इसे नुकसान होता है। और जो रोजमेरी है 13 से 21 डिग्री है। तो ये टेम्परेचर रेंज हमें थोड़ी ध्यान रखनी होती है। इससे ये जब पाला गिरता है, तो ये रोजमेरी का एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए आपको वुडी पार्ट जैसा आपको दिखने लग जाएगा इसमें, और ऐसा लगता है कि प्लांट एकदम एरियल पार्ट इसका खत्म हो रहा है। तो और जैसे ही ब्लूम टाइम आता है, ये फिर से दोबारा से हरा हो जाता है। ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये इसमें पाले की वजह से या फिर बर्फ की वजह से इसमें ब्लैकनेस आ जाती है। तो इससे बचने के लिए अगर पाला गिर रहा है तो इरिगेशन कर लेना चाहिए। और अगर इरिगेशन का इंतजाम नहीं है कुछ किसानों के पास, और बहुत ज्यादा पाला गिर रहा है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, इस तरीके से लो टनल बना लेने हैं। लो टनल बना के, लो टनल के लिए आपको ये जो वायर दिखाई दे रही है, आयरन वायर, आयरन वायर चाहिए होती है, और पॉलीथीन चाहिए होती है। पॉलीथीन जैसे ही मान के चलिए कि आपने जो प्लांटिंग करी हुई है उसमें आप एरिया देख लेंगे, और उस एरिया को आप 3 फीट
चौड़ाई वाला अगर आपको एरिया लेना है तो उसके लिए आपको 6 फीट का वायर चाहिए होगा। 5 mm का ये वायर होता है। और उससे आप ये मान के चलिए कि 3 फीट ऊंचाई वाला आप टनल तैयार कर लेंगे। इसमें आपको पॉलीथीन डाल के इसे कवर कर देना होता है। तो आपको यहाँ पहाड़ों पे, हमारे यहाँ पे आपका दिसंबर जनवरी बहुत ज्यादा पाला या बर्फ गिर रही होती है, तो उस समय इन प्लांट को इन्हें सेव करना होता है। उसके बाद आप जैसे ही सर्दी खत्म होती है, पाला गिरना बंद हो जाता है, हम लोग इसे यहाँ पॉलीथीन को हटा देते हैं। अब जैसे ही पॉलीथीन हटाते हैं मार्च में या फिर एंड वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ब्लूम टाइम जैसे ही आता है, तो 15-20 दिन में फिर से ये फसल एकदम हरी हो जाती है। और ये रोजमेरी की फसल का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट इमेज आपको जो दिखाई दे रही है इसमें, इसमें रोजमेरी का फील्ड है। अब बात आती है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, प्रोपोगेशन कैसे करें। तो अभी इसमें मैं आगे अभी थोड़ी देर, 5 मिनट करीब, आपको प्रोपोगेशन के बारे में बताऊंगा। तो इसमें प्रोपोगेशन के लिए आपको फील्ड में जाना है, सिकेटियर की हेल्प से आपको इसमें कटिंग, इसे कट कर लेना है। कटिंग जो है आपका 4 से 5 इंच के करीब, 6 इंच के करीब इसकी हाइट होती है। और नीचे की जो आपका बॉटम का जो 2 से 3 इंच है वो हमें रिमूव कर देना है, लीफ। उसके बाद गोबर की खाद और मिट्टी आपका पॉली बैग में फिल करना है और उसमें आपको ये लगा देना होता है। तो ये इमेज है, आप इसे फिर से देख सकते हैं। ये जो आपका 3 से 4 इंच, 5 इंच तक हमें करीब इसका कट करके ब्रांच से हमें लेके आना है कटिंग को। और नीचे की बॉटम की 3 इंच, 2 से 3 इंच हमें इसकी पत्तियों को रिमूव कर देना होता है। ये फिर से देखिए, फर्स्ट इमेज में आपने ब्रांच ली, ब्रांच से आप सिकेटियर से आपने इसकी कटिंग बनाई। कटिंग इस तरीके की होगी। बॉटम की हमें ये जो 2 से 3 इंच है लीफ हमने हटा दी है। ये जो दिखाई दे रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पल्सिंग। पल्सिंग में आपको क्या करना है, फील्ड से जब आप लेके आ रहे हैं किसी भी ब्रांच को लेके आ रहे हैं, और पॉली बैग में लगने तक इसमें ये मान के चलिए कि एक 2 से ढाई घंटे का करीब करीब गैप रहता है। तो उस टाइम में प्लांट की जो ब्रांच है उसे खुला नहीं छोड़ना है। उसमें क्या करना है, टब, बाल्टी या जैसा भी आप जितने अमाउंट में आप बनाना चाह रहे हैं कटिंग, उस अमाउंट को देखते हुए आपको कोई बर्तन लेना है, उसमें आप पानी डाल देंगे और उसमें डिप करते जाएंगे। और उसके बाद आपने जो भी पॉली बैग फिल करने वाला जो एरिया है वहां पे इजीली इसे ले जाके लगा देना है। इसके लिए ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें आप ध्यान से देखिए, गोबर की खाद, फर्स्ट इमेज में गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सचर है ये। गोबर की खाद और मिट्टी पॉली बैग में भर ली गई है। पॉली बैग में भरने के बाद इसमें हमें क्या करना है, इरिगेशन कर लेना है, अच्छे से मॉइस्ट कर देना है मिट्टी को। मिट्टी जब भीग जाएगी तो फिर उसमें ये जो लकड़ी की हेल्प से इसमें क्या करना है, होल कर लेना है। होल करने के बाद जो मैंने कटिंग बताई है, ये जो कटिंग इस तरीके से तैयार हो जाएंगी। बॉटम पार्ट को इन होल्स में डाल देना है। फिर से ये देख सकते हैं, ये वाला जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कटिंग को हमें डालना है। और उसके बाद होल को टाइटली सही से बंद करना है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ वर्कर हमारे सेंटर का ही ये इमेज है, कटिंग लगा रहे हैं और इसे छेद को सही से बंद कर देना है और दोबारा से इतना अच्छे से बंद करना है कि इसमें एरेशन ना रह जाए। और उसके बाद इरिगेशन कर देना है वाटर स्प्रिंकलर की हेल्प से। तो इस तरीके से ये मान के चलिए कि 20 से 25 दिन में रोजमेरी, या फिर रोजमेरी के अलावा आपका ऑरिगेनो, थाइम और बहुत सारे प्लांट जिनका वेजिटेटिव जो वेजिटेटिव पार्ट से आपने प्रोपोगेशन जिसका है, तो एसेक्सुअल टाइप ऑफ प्रोपोगेशन है जिसका, तो वो आप इसी तरीके से हमारे यहाँ लोकेशन पे 20 से 25 दिन में मोस्टली प्लांट्स का सैपलिंग तैयार हो जाता है। इसका जो पहचान है वो ऐसे है कि एक तो एरियल व्यू आपको जो दिख रहा है उसमें आप ये देखिए कि हाइट उसकी बढ़ चुकी है थोड़ी सी। और अगर रूट जोन देखना है तो उसके लिए आप देखिए 20 से 25 दिन में इस तरीके का उसमें रूट जोन तैयार हो जाना चाहिए। आपने ये जो कटिंग लगाई हुई थी तो 20 से 25 दिन में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद मैंने बात की थी कुछ प्लांट जो है हमारे सीड से तैयार होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें उस एरिया को जहाँ पे हमें नर्सरी तैयार करनी है वहां पे उसकी जुताई कर लेनी है। जुताई करने के बाद जब आपको नर्सरी तैयार करनी है तो हमने जो टाइम हमें पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको नर्सरी तैयार करनी है, उससे कुछ दिन पहले जुताई करके उस एरिया को छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, 15 दिन, 10, 12, 15 दिन उसका सॉइल सोलराइजेशन होने देना है। सॉइल सोलराइजेशन और फास्ट हो उसके लिए आप पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं। पॉलीथीन का यूज करेंगे तो उसमें जितनी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है उस मिट्टी में जो कि प्लांट्स के लिए
प्लांट पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती है, तो वो एक्टिविटी वहीं पे ब्रेक हो जाती है। और इसी मिट्टी में हमें क्या करना है, क्योंकि ये जितनी भी हर्ब्स हैं, इसके जो यूजर हैं या जितनी भी ये मैन्युफैक्चरर हैं, इस हर्ब्स ऑर्गेनिकली तैयार जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन्हीं को प्रिक्योर करते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि ऑर्गेनिकली जैविक तरीके से खेती को करना होता है। तो प्लांट्स को जो सोल्यूबल अनसोल्यूबल सोल्यूबल फॉर्म में जो भी न्यूट्रिशन जमीन के अंदर है वो इजीली मिल जाए, और किसी भी तरीके से नर्सरी स्टेज पे पौधा बनाने के टाइम पे या फिर फील्ड में जब हमने प्लांटिंग कर दी है उस समय रोग ना लगे और अच्छी उसकी ग्रोथ हो। उसके लिए हमें इसमें बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। इसमें राइजोबियम कल्चर जो होता है वो तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, राइजोबियम पाउडर गोबर की खाद में मिक्स करना है। 1 केजी 1 कुंटल के लिए सफिशियंट होता है। वो पाउडर आपको इसमें डालना है गोबर की खाद में। गोबर की खाद को छाया में कहीं पे रखना है और मॉइस्ट पानी से करते रहना है। कुछ दिन बाद देखेंगे आप इसमें व्हाइट कलर का, ग्रीनिश कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जाल जैसा बन जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आपका ये कल्चर तैयार हो गया है। फावड़े से इस ढेर को, गोबर की खाद के ढेर को फिर से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसे नर्सरी स्टेज में जो भी जहां आप लगाना चाह रहे हैं वहां उसे उस मिट्टी में मिक्स करिए। और एक इसकी जो विड्थ है पट्टी की 1 मीटर रखिए, और लंबा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने एरिया में आप लगाना चाह रहे हैं पर्टिकुलर कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं। उसमें लाइन इस तरीके से आपको देख लेनी है, और उसमें आपको बीज डाल के इस तरीके से गोबर की खाद की एक थिन लेयर इसमें लगा देनी है। अब जैसे बात करें रोजमेरी की, रोजमेरी आपका 15 से 16 दिन में रूट इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। 25 से 30 दिन में ये तैयार हो जाता है। और 1 हेक्टर के लिए यहाँ पे 40, 1 हेक्टर के लिए पहाड़ों पे 40,000 आपको पौधे करीब करीब चाहिए होते हैं। लेमन ग्रास का भी ऐसे ही है, ऑरिगेनो, थाइम, सब में 40,000 पौधे चाहिए। स्पीयरमिंट करीब 100 केजी चाहिए। कैमोमाइल 500 ग्राम बीज चाहिए। बेसिल का 700 ग्राम और सैलरी का 500 ग्राम। ये कुछ जो डिटेल है इसमें आप देखेंगे कि हार्वेस्टिंग मैंने बताया 3 मोस्टली सब में मिल जाती हैं। अब कैमोमाइल की अगर हम बात करें तो कैमोमाइल आपका 1 मंथ तक हार्वेस्टिंग मिलती है हर अल्टरनेट डे पे। तो कैमोमाइल मैंने बताया क्योंकि छोटा पौध फ्लावर होता है इसका, तो बहुत ज्यादा इसमें हमें मैन पावर खर्चनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हमने कुछ इसमें तरीके इजाद किए हुए हैं कि कैसे इसकी हार्वेस्टिंग में मैन पावर कम लगे और इसका जो इकोनॉमिक्स है वो ना गड़बड़ा जाए किसी किसान का। तो अभी आगे देखेंगे इसमें। आ, मैंने बताया आपको कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इनके ऑयल में, जिसकी वजह से इसका औषधि महत्व या फिर अलग अलग फार्मास्यूटिकल या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या फिर अलग अलग इंडस्ट्री इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोजमेरी है उसमें सिमनॉल होता है, बर्नॉल होता है। लेमन ग्रास में सिट्रॉल, लिनालूल है। ऑरिगेनो जो कि वैरायटी हमने जिसकी रिलीज की हुई है उसमें आपका कार्विकॉल इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये जितनी भी वैरायटी यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फॉरेन से मंगा के, इसमें कार्विकॉल नहीं होता है। ऑरिगेनो में कार्विकॉल है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि एज ए सीजनिंग तो इस्तेमाल होना ही है इसका, पर इसका एज ए हर्बल चाय भी हम लोग मैन्युफैक्चरर को सजेस्ट कर रहे हैं। और वो सैंपल हमने जब भेजे हमारी वैरायटी के, तो उन्हें वो समझ में आए हैं और वो लोग अब इसे ग्रो कराने का भी प्लान कर रहे हैं। एज ए हर्बल चाय इसे निकाला जा रहा है क्योंकि इसमें कार्बोकॉल है, और कार्बोकॉल का जो यूज है ओमेगा 3 भी है इसमें। तो हर्बल चाय अगर कोई भी यूजर कंज्यूम करता है इसे, तो उसका डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा रह सकता है। तो कार्बिकॉल का यूज ये है। थाइम में थाइमोल रहता है, अजवाइन की तरह खुशबू आती है। लेमन बाम में जैसे सिट्रॉल आपका पाया जा रहा है, रिच सिट्रॉल होता है इसमें मेजर जो कंपाउंड है। स्पीयरमिंट में आपका कार्बोन है, सीनियोल है। कैमोमाइल में आपका बिसा ऑक्साइड, लिनालूल, सिट्रॉल, ये सारे के सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपने पौधा तैयार कर लिया है, आपका नर्सरी तैयार हो गई है या सैपलिंग तैयार हो गई है, तो हम लोग पहाड़ पे, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इमेज, आपको जो फर्स्ट इमेज दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करना है, जुताई कर लेना है। जुताई आपको मिट्टी पलट हल से करनी है। उसके बाद धूप के एक्सपोजर में कुछ दिन रहने देना है। उसके बाद गोबर की खाद डाल के दो जुताई आपको कल्टीवेटर से कर देनी है, और उसके बाद आपका जो खेत है तैयार हो जाएगा। खेत तैयार हो जाएगा। इसे जितना भी ये प्लांटिंग है आप मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट का रोजमेरी से ही समझने की कोशिश करिए। प्लांट कोई भी हो सकता है। प्लांट स्पेसिंग मोस्टली 40 से 50, 50x50, या फिर लगभग इसके लमसम रहता है। समझने के लिए आप इसे देख लीजिए। इस तरीके से इसमें गड्ढे किए जाते हैं। गड्ढे से जो मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी में आप गोबर की खाद मिक्स कर लीजिए, और
ये जो पौधे तैयार हुए हैं रोजमेरी के, उसमें आपको पॉलीथीन हटा देनी है। पॉलीथीन हटा के गड्ढे में ही आपको पौधे डाल के तैयार कर, इसमें गड्ढे में डाल के आप प्लांटिंग आप इसकी कर सकते हैं। अब बात आती है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। आपने प्लांटिंग कर दी है, प्लांटिंग के बाद की जितनी भी केयर है उसमें आपको टाइमली, अगर आप रेनफेड फार्मिंग कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पे जितने भी ये प्लांट हैं, हम लोग यहाँ पे रेनफेड फार्मिंग वाला जो एरिया है वहाँ पे किसान क्या है, वर्षा आधारित खेती करता है। तो जितने भी ये प्लांट हैं एनुअल जो होते हैं, वो तो रेनफेड फार्मिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। हम जैसे बात करें लेमन ग्रास की, रोजमेरी की, तो ये यहाँ पे रेनफेड रेनफेड फार्मिंग में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो पानी अगर है तो पानी का इंतजाम अगर है तो इरिगेशन अच्छे से किया जा सकता है, और नहीं है तो वर्षा आधारित खेती भी इनकी की जा सकती है। तो पानी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी मिलता है तब भी दो कटाई आसानी से मिल जाती है इसकी। तो वीडिंग हमें टाइम पे करते रहना है। इसमें एक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं है। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें वोलेटाइल नेचर का इन पौधों में ऑयल होता है। तो अपने आसपास ये किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़ों को आने नहीं देते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं प्लांट कीड़े मकोड़ों को। तो डिजीजेस भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं लगती हैं। तो आपको अलग से बहुत ज्यादा कहीं भी किसी तरीके से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना होता है, जो कि फेवर करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इजिली इन्हें लगाया जा सकता है। तो इसके बाद बात आती है कि किसान जब इसे बेचता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे इसका करें। और जब बेचता है तो बेचते समय जो क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि जितना भी आप वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, क्रॉप जितने भी हम किसान अपने इंडिया में यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं कि कैसे इसे उगाना है, और एक ट्रेनिंग उसे मिली हुई है घर से ही। पर ये जितने भी प्लांट होते हैं, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, सतावर है, सफेद मूसली है, ऑरिगेनो है, जिरेनियम है, रोजमेरी है, गुलाब है, ये जितनी भी खेती हम लोग करते हैं किसान, या जो भी इसे ग्रो करना चाह रहा है, तो उसमें इशू ये रहता है कि कल्टीवेशन करना वो सही से नहीं जानता है, और खेती बिना ट्रेनिंग के अगर वो शुरू कर देता है, तो जो क्वालिटी मिलनी चाहिए किसी पर्टिकुलर प्लांट के किसी रूट पार्ट की, सॉरी, या फिर स्टेम पार्ट की या फ्लावर की, वो क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं कर पाता है तो मार्केट में बहुत अच्छा उसका रेट नहीं मिलता है। तो थोड़ा कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां से भी आप पर्टिकुलर किसी वैरायटी को ले रहे हैं, वैरायटी जो है रिलीज्ड वैरायटी होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर वैरायटी में किस अमाउंट में ऑयल परसेंटेज है, और वो ऑयल परसेंटेज के अलावा उस ऑयल में केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो किस अमाउंट में उसमें अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी मैन्युफैक्चरर ने ऑरिगेनो की ऑरिगेनो को आपसे प्रिक्योर करना चाह रहा है, तो वो सीधा सा आपसे यही बोलेगा कि सीमैप से जो रिलीज वैरायटी है वही वैरायटी होनी चाहिए। और वो वैरायटी आप हमसे लेके जाते हैं या फार्मर लेके जाते हैं, तो उनके पास एक रिकॉर्ड रहता है। और उसके बाद जितना भी प्रोसेस जो होता है कल्टीवेशन का वो हम बताते हैं। और उसके बाद इसे कल्टीवेशन करने के बाद जब ड्राई करके जो लेके जाता है फार्मर, तो अगर मैन्युफैक्चरर को पता होता है कि वैरायटी जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ली हुई है, तो उसका अच्छा रेट मिल जाता है। तो अगर हम क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो क्वालिटी को हम डिसाइड कर सकते हैं आउटर क्वालिटी और इनर क्वालिटी। तो आउटर क्वालिटी क्या होती है, जैसे पर्टिकुलर हम बात करते हैं किसी हर्ब्स की, जिसकी हर्बल चाय बनाई जानी है, मैन्युफैक्चरर उसे प्रिक्योर करना चाह रहा है फार्मर से, तो किसान अपने स्तर पे आउटर क्वालिटी को तो चेक कर सकता है। आउटर क्वालिटी को चेक करने के लिए आउटर क्वालिटी क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि ऑरिगेनो या फिर रोजमेरी की जो पत्ती है, वो दिखने में कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसमें किसी तरीके की गंदगी तो नहीं है, उसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं है, उसमें कोई दूसरी स्पीसीज तो नहीं मिक्स हो गई है। पर्टिकुलर अगर खरीदार ने केवल बोला है कि हमें केवल पत्ती ही चाहिए, तो आपको पत्ती ही देना है, और उसमें किसी भी तरीके का स्टेम नहीं होना चाहिए, भले ही वो ऑरिगेनो का ही हो, रोजबेरी का ही क्यों ना हो। तो जिस अमाउंट में जिस पार्ट की बात हुई है वही पार्ट होना चाहिए, तो प्योरिटी चाहिए। अब सीधी सी बात है कि जैसे ऑरिगेनो होता है या रोजमेरी होता है या लेमन बाम होता है, थाइम होता है, मर्जरम होता है, तो ड्राई होने के बाद भी इसका कलर जो होता है वो एकदम ग्रीनिश ही होना चाहिए। तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपकी जो हर्ब है बहुत अच्छी है। किसी भी तरीके का इंसेक्ट बाइट नहीं होना चाहिए उसमें, कलर उसका डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए उसमें,
किसी भी तरीके की मिक्सिंग ना हो, तो वो आंखों से जो दिखाई दे जाता है। इसके अलावा इसकी खुशबू को आप फील कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके बाद क्या करेंगे, आप चेक करेंगे इसमें अच्छी खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो खुशबू के लिए आप उसे हल्का सा क्रश करेंगे उसकी पत्ती को, और देखेंगे कि आपकी सेंसेस तक, सेंस जो सेंसर है आपके नोज तक, वो एरोमा आपके पास तक पहुंचेगी, उसके मॉलिक्यूल जो है हवा में घुलेंगे और आप तक पहुंचेंगे, तो अच्छी एरोमा आनी चाहिए। तो उससे आप पहचान पाएंगे कि जो इसमें ऑयल परसेंटेज है वो अच्छी क्वालिटी में है, क्योंकि इसमें एरोमा अच्छी आ रही है। एरोमा अच्छी होगी तो उसके अंदर ऑयल होगा, और ऑयल अगर है तो सीधी सी बात है कि जो कंपाउंड, जो कि किसी भी इंडस्ट्री को जिसकी नीड है, वो उसमें पूरी अच्छी अवस्था में उसमें उपलब्ध है। तो ये आउटर क्वालिटी हो गई। इनर क्वालिटी क्या होता है? इनर क्वालिटी मैन्युफैक्चरर जब अपनी मैन्युफैक्चरर यूनिट पे लेके जाता है, तो वहां पे क्या करता है वो, इनर क्वालिटी के लिए इसका ऑयल परसेंटेज को चेक करता है। जैसे लेमन ग्रास, रोजमेरी, ऑरिगेनो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिटरेचर में मेंशन किया हुआ है हमने कि जैसे हमारा लेमन ग्रास का जो पौधा है उसमें 1 कुंटल जब आप हर्ब लेंगे, तो वो करीब करीब आपको 1 लीटर आपको उसमें तेल मिलता है, मतलब उसमें 1% ऑयल पाया जाता है। तो ये पता है कि इसमें 1% ऑयल पाया जाता है पर्टिकुलर किसी क्रॉप में, तो वो परसेंटेज को चेक करेगा। 1% अगर नहीं होगा 1 कुंटल में, 1 कुंटल को लैब में तो नहीं निकाला जा सकता है, तो उसे क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं 100 ग्राम का। 100 ग्राम में अगर 1 ml हमें नहीं मिल रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि इसमें ऑयल का परसेंटेज ड्राई हर्ब में कम हो गया है, जबकि ड्राई हर्ब में तो और ज्यादा होता है। तो वो परसेंटेज अगर डाउन होगा तो उसी के हिसाब से वो रेट डाउन कर देगा। अब इसका जो कि मैंने बताया कि ये, जैसे आप बात करें कि ऑरिगेनो की हर्बल चाय की अगर बात आती है, तो कार्बोकॉल इसमें पाया जाता है। कार्बोकॉल को चेक करने के लिए जीसी, इसका गैस क्रोमेटोग्राफी की जाती है, और वहां से पता लगाया जाता है कि कार्बोकॉल का परसेंटेज 60% है, 62% है, या 65% है। तो परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी परसेंटेज में रहना चाहिए। अगर वो कंपाउंड उसमें नहीं है, तो जो यूजर है हर्बल चाय के, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो कंपनी इन चीजों का ध्यान रखती है। तो ये जितना भी आपने प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट अगर ठीक से नहीं किया हुआ है, तो इनर क्वालिटी और आउटर क्वालिटी गड़बड़ा जाएगी, और फार्मर को बहुत अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो यही सारी वजह हैं जिनकी वजहों से किसान जाता है खरीदार के पास, और बाद में रेट अच्छा नहीं मिलता है, तो फिर बाद में शिकायतें रहती किसानों की कि हमने खेती बहुत मेहनत से की और उसके बाद हमें रेट अच्छा, बहुत अच्छा नहीं मिला। तो वजह ये रहती है कि मैन्युफैक्चरर की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। आउटर क्वालिटी आपने मेंटेन कर ली, कुछ वजहों से आपने इनर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए हैं, तो बहुत अच्छा इसमें रेट हमें नहीं मिल पाता है। ये कुछ क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। क्वालिटी पैरामीटर में जो फर्स्ट है आपका हाई कंपाउंड ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। सेकंड इज हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी। थर्ड इज लो माइक्रोबियल कंटामिनेशन। एंड थर्ड इज फ्री ऑफ रेजिड्यूअस। अगर हम फर्स्ट की बात करें, हाई कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें, जो मैं अभी बात कर रहा था कि उसकी हाई अमाउंट में उसका ऑयल परसेंटेज और उसका केमिकल जो कंपाउंड जो पाया जाता है वो उसमें उसकी हाई अमाउंट में होना चाहिए। प्योरिटी की अगर हम बात करें, तो इसमें मैंने बताया कि खरीदार जैसे कि वही सैंपल लेता है, ड्राई हर्ब उसने लिया, आपकी जितना भी आपके पास कुंटल रॉ मटेरियल है हर्ब्स का, तो वो क्या करते हैं, आपका कुछ उस सैंपल में से कुछ अमाउंट में आपका वो सैंपल 100 ग्राम के करीब ले लेंगे, और उसमें से देखेंगे वो कितना जो उन्हें रिक्वायरमेंट है, कितने अमाउंट में वो हर्ब अवेलेबल है और कितना उसमें मिक्सिंग है। तो दोनों को अलग अलग करके वेइंग स्केल पे तौलने के बाद वो आपके सैंपल का रेट डिसाइड करते हैं। जितना उसमें गंदगी होगी या जितना उसमें अनप्योरिटीज होगी, उतना वो रेट कट कर लेते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितना प्योर मटेरियल होगा उतना उनका कॉस्ट जो है बचता है। अगर गंदगी होगी तो वो पूरा प्रोसेस कराना पड़ता है, साफ कराना पड़ता है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है आपको क्वालिटी पैरामीटर में, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। अगर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है, तो उसके लिए भी बहुत सारी हर्ब ऐसी होती हैं जिन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होते हुए भी खरीद लेते हैं। और बहुत सारी प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इजीली पूरी हो जा रही है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है तो किसानों से वो नहीं खरीदते हैं। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के होने पे उसमें एक तरीके से इरेडिएशन और बहुत सारे अलग अलग रेज के द्वारा इन्हें पास किया जाता है इन हर्ब्स को, जिससे कि किसी भी तरीके की माइक्रोबियल एक्टिविटी अगर है तो वो ब्रेक हो जाए, तो उसमें खर्च आता है किसी भी मैन्युफैक्चरर का।
तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत बेस्ट प्रैक्टिस ही हमें अपनानी है। कोई भी आपका किसी भी तरीके की फंगल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ अगर हो रही है तो उस प्लांट को हमें फील्ड से हटा देना है ड्यूरिंग कल्टीवेशन। और हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर ड्राई कर रहे हैं उसे, तो उस समय भी इन चीजों का ध्यान रखना होता है। फोर्थ है फ्री ऑफ रेजिड्यूअस। उसके लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने कल्टीवेशन स्टार्ट किया हुआ है, कल्टीवेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं कि एक इमेज, ये आपका फॉरेन कंट्री का इमेज है, जिसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फार्म, प्लीज डू नॉट स्प्रे, वॉच विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। तो हमें ये जो इंडिकेशन है, ये इसमें ये कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमारे मतलब आप डायरेक्शन जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, तो उसमें आप डायरेक्शन हवा का देख लीजिए। तो कहने का उद्देश्य ये है कि कल्टीवेशन आप ऐसी जगह करिए जहाँ पे आसपास अगर कोई खेती कर रहा है, तो कोई भी अगर स्प्रे अगर होगा तो वो आपके खेत में अगर आया, प्लांट्स पे अगर वो आया, तो उसका भी फर्दर जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे मैन्युफैक्चरर, तो उस समय वो आइडेंटिफाई हो जाता है और वो ऑर्गेनिकली ग्रो वाली कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो आपका जो भी मटेरियल अगर आपने रिटिन में कहीं दिया हुआ है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाएंगे और वही खेती वही जो मटेरियल है वही आपका हम खरीदेंगे, तो वहां पे वो सैंपल आपका जितना भी आपने तैयार किया हुआ है वो बेकार हो जाएगा। और तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है, ऑर्गेनिकली तरीके से उगाना है। आसपास भी अगर कोई उगा रहा है तो वहां पे हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि स्प्रे अगर वो कर रहे हैं, अगल बगल के खेतों में अगर ट्रेडिशनल तरीके से खेती की जा रही है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, तो वो आपके खेत में भी आसपास अगर हो रहा है तो वो आ सकता है। इस तरीके की इमेजेस अगर आप दिख रहे होंगे, ये गंदी एक जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल खेत जो है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छे से बेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने बताई उस तरीके से ही खेती करनी है। गंदगी आपको जो दिखाई दे रही है इसमें सुखाने के टाइम पे, अगर वो गंदगी आपने है तो वो भी आपकी सैंपल में आ सकती है। सफाई का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पे, हर स्टेज पे हमें, ड्राइंग प्रोसेस के टाइम पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फील्ड में कटाई के टाइम पे ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे हमें हाइजीन जो है किसी भी हर्ब, अच्छी क्वालिटी की हर्ब्स के लिए हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसकी सीजनिंग बनाई जाती है। इन जितने भी प्लांट्स मैंने जो बताया, इनकी हर्बल चाय बनाई जा रही है, सीजनिंग बनाई जा रही है, और भी बहुत सारे अलग अलग इनके यूजेस होते हैं। ये कुछ इसके इक्विपमेंट हैं। आपका ये इक्विपमेंट जड़ों की खुदाई के लिए अलग टाइप के इक्विपमेंट हैं, सिकल बार और ये जो हसिया आपका जितना भी अभी हम लोग कल्टीवेशन करा रहे हैं, तो उसमें मोस्टली मैंने बताया कि स्कैटर लैंड होती है। तो जो मैनुअली हार्वेस्टिंग पे ही हम लोग का फोकस रहता है। अब जैसे बात करें हम जड़ों की कटाई के लिए, जड़ों की कटाई के लिए आजकल ये डिगिंग मशीन आने लग गई है। जैसे अश्वगंधा, सर्पगंधा, सफेद मूसली, सतावर, ये सब रूट पार्ट इनका यूज किया जाता है। तो उसमें होता क्या है, फावड़े से अगर हम खोदते हैं तो क्या होता है, रूट जो है वो रूट पार्ट कट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए रूट डिगिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इजीली आपकी जो रूट है वो निकल आती है और अच्छा रेट में आपको मार्केट में मिल जाता है। अ, ये कुछ इमेज आपको दिखाई दे रही होंगी। ऊपर वाली जो इमेज है वो है लेवेंडर। लेवेंडर अभी सीमैप ने अभी एक एरोमा मिशन हम लोगों का अभी चल रहा है। एरोमा मिशन में हिली एरिया में हम लोगों ने लेवेंडर का, जम्मू का जो बेल्ट है वहां पे हम लोगों ने कल्टीवेशन इसका स्टार्ट कराया है। एरोमेटिक प्लांट है ये। इसमें जो ऑयल होता है लेवेंडर, आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा। तो ब्लू रेवोल्यूशन नाम इससे दिया गया है। तो वहाँ के जो किसान हैं इसकी खेती को अडॉप्ट किया हुआ है। उत्तराखंड में जो मैंने बताया कंडीशन है, वैसी सेम कंडीशन वहां भी है हिली एरिया में। तो वहां पे इसकी खेती किसानों ने अपनाई हुई है और बहुत अच्छा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है और बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी सुधरी हुई है। तो कटाई के लिए यहाँ पे मैंने बताया कि, क्योंकि बताया मैंने, स्कैटर लैंड होती है, कंट्रोल कल्टीवेशन होता है, तो वो मैनुअली इसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। अब ये एक आपको इमेज नीचे दिखाई दे रही होगी, सेकेंड इमेज जो दिखाई दे रहा है कैमोमाइल का। कैमोमाइल के यूजर जो फॉरेन कंट्री में है बहुत ज्यादा है, हर्बल चाय बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है, तो बड़े एरिया में इसकी खेती भी की जाती है। अब क्योंकि वहाँ पे लार्ज एरिया है, बड़ा एरिया है, और वहाँ पे मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो उसके लिए अ, इसका मैकेनाइजेशन तरीके से इसका कल्टीवेशन किया जाता है। हार्वेस्टिंग जो है आपका दिखाई दे रहा होगा, पूरी तरीके से मशीन से ही इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो
इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह अभी हम ले सकते हैं। हम हमारे कांटेक्ट में कुछ खरीदार भी हैं। जैसे ऑरिगेनो की खेती मैंने बताया कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे यूज जितना भी हो रहा है वो सारा का सारा यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो हमारे खरीदार में, हमारे कांटेक्ट में कुछ ऐसे भी खरीदार अभी जुड़े हमसे, बेंगलोर से हैं वो। तो वो जितना भी इंडिया में कंज्यूम हो रहा है उसका मोस्टली जितना भी यहाँ पे यूज हो रहा है वो सारे के सारे ऑरिगेनो को इंपोर्ट करने का काम करते हैं और इंडिया में सप्लाई दे रहे हैं। तो उनके साथ दिक्कत ये आ रही थी क्योंकि मैंने बताया वहाँ पे मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। तो वो लोग जो खेती करा रहे हैं वहाँ पे खेती करा भी रहे हैं, और जो खेती कर रहे हैं फार्मर उनसे भी लेते हैं और खेती भी कराते हैं। तो उन्हें दिक्कत ये आ रही है कि इसमें वीड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मशीन के साथ साथ, मशीन में फसल के साथ साथ वीड भी कट के आ जा रहा है। तो यहाँ पे प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो बैठे हुए हैं उन्हें बड़ा आपत्ति रहती है और दिक्कत रहती है कि अलग अलग जो प्लांट हैं वो भी उसमें आ जा रहे हैं, तो उन्हें इम्पोर्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। और दूसरा, उनका जो क्वालिटी ऑरिगेनो का होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद जो हमारी रिलीज वैरायटी है वो कल्टीवेशन कराने वाले हैं, और किसानों से हमने ऑरिगेनो और रोजमेरी दोनों का एग्रीमेंट, किसानों का क्लस्टर बना बना के यहाँ उत्तराखंड में उसका एग्रीमेंट भी करा दिया है क्लस्टर बना के। और अभी आगामी जो अभी पाला खत्म होने के बाद या फिर बर्फ जहां जहां गिर रही है उसके बाद हम लोग कल्टीवेशन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से और एरोमा मिशन जो हम लोगों का चल रहा है उसकी हेल्प से करने वाले हैं अभी जल्दी ही। तो ये कुछ है। और थर्ड इमेज में आप देख रहे होंगे, मैंने बताया था कैमोमाइल जो है छोटा फूल होता है, इसका तोड़ाई में मैन पावर बहुत खर्च होता है। एक एक छोटा छोटा फूल तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए इस तरीके का एक बॉक्स होता है कंघी वाला। इस कंघी में 4 mm 3 mm अलग अलग साइज का स्पेस वाला ये रहता है। और जैसे 4 mm का आपको फूल चाहिए तो 4 mm वाली कंघी का इस्तेमाल करना होता है इस बॉक्स का। 5 mm वाला चाहिए, बड़े साइज का फूल अगर चाहिए तो 5 mm वाली कंघी भी आती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लावर, ये इसका ऑप्टिमम हार्वेस्टिंग टाइम है फ्लावर का, फ्रूट का और आपका रूट का। फ्लावर की अगर हम बात करें तो ब्लूम टाइम होना चाहिए, मतलब ब्लूम टाइम अच्छे से हो, और सॉरी ब्लूम होना चाहिए फ्लावर को। और धूप वाले दिन होने चाहिए, सुबह के टाइम पे हमें इस फूलों की तुड़ाई करनी होती है। ऐसे समय पे करना चाहिए कि मॉइस्चर भी ना हो और धूप पूरी तरीके से बहुत ज्यादा ना हो। तो वही 10-11 बजे के करीब आपको इसकी फूलों की तुड़ाई करनी होती है। और फ्रूट और सीड की अगर हम बात करें तो फुली मैच्योर हो जाना चाहिए तब करना चाहिए। बीज अच्छे से मैच्योर फ्लावर फ्रूट अगर हो जाएगा तो उसमें जो सीड है वो उसका एकदम सीड उसमें एक तरीके से अच्छे से मैच्योर हो चुका होगा। रूट की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि जितना भी सर्पगंधा, सतावर, सफेद मूसली, ये जितने भी प्लांट होते हैं, सुगंधा, सर्पगंधा, ये जितने भी प्लांट हैं इनका रूट जो है 9 से 12 महीने में तैयार होता है। तो 9 से 12 महीने तो लगने ही लगने हैं। इसके अलावा इसका जो प्लांट होता है एरियल पार्ट, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लगभग जो है एरियल पार्ट उसका खत्म होने लगता है। तो वो एक इंडिकेशन है, उसका ध्यान रखना होता है। बारिश के समय पे हर्ब्स जो है उनकी कटाई या फूलों की कटाई जो है नहीं करनी होती है। ओस के समय पे नहीं करनी होती है, पानी में बहुत ज्यादा बारिश के बाद अगर नमी है तब नहीं करनी होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तब नहीं करनी होती है। ह्यूमिडिटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि ड्राई हर्ब का प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की आपको हर्ब अगर चाहिए, उसमें अगर ह्यूमिडिटी अगर है मौसम में, तो सुखाते टाइम अगर ह्यूमिडिटी है तो आपकी जो हर्ब्स है वो काली पड़ जाएगी। और काली पड़ने की वजह जो होती है वो आगे मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम पत्तियों वाली जो फसल है जैसे स्पीयरमिंट है, मेंथा आर्वेन्सिस है, मेंथा पिपरेटा, सिट्रेटा, स्पाइकेटा, ये जितने भी स्पीसीज है मेंथा की, इनकी पत्तियों का इस्तेमाल हर्बल चाय में किया जाता है। तो इसमें ध्यान ये रखना होता है कि फूल अच्छे से मैच्योर हो जाए, पौधा सही से 2 से ढाई महीने बाद पौधा मैच्योर हो जाना चाहिए। बॉटम की जो पत्तियां हैं पौधे की वो पीली पड़ जानी चाहिए, उसमें फ्लावर बड बनने लग जानी चाहिए, उसमें आप देखेंगे कि बड आ जाएगी। तो ये इंडिकेशन होता है कि उस समय इसकी कटाई हमें कर लेनी चाहिए। 10 से 11 बजे के करीब मैंने बताया करना चाहिए, जब इसमें पौधे में किसी भी तरीके का मॉइस्चर ना हो। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। आप कैमोमाइल की अगर हम बात करें या इसके अलावा और भी कोई फ्लावर वाली जो फसल है, इसमें एक होमोजीनस, मतलब एक तरीके से एक जैसा कलर होना चाहिए पूरे फील्ड का, जितने भी एरिया में आपने पौधे लगाए हुए हैं, फसल आपकी खड़ी हुई है, एक जैसा कलर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका फसल तोड़ाई के लिए तैयार है, तो उसके बाद से फूल वाली जितनी भी फसलें होती हैं उसमें ये मान के चलिए अल्टरनेट डे पे इसकी हमें, जैसे आपकी गुलाब का फूल है, कैमोमाइल का फूल है, जितने भी ये फूल जिसकी खेती हम लोग कराते हैं उसमें हर अल्टरनेट डे पे हमें तोड़ाई करनी होती है।
ये सुखाने का कुछ एक इमेज आप दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप ये देखिए, जो रेक दिखाई दे रही है, इसमें जालीदार हमने एक रेक ली हुई है। इसकी वजह ये है कि इसमें एरेशन नीचे से, ऊपर नीचे से एरेशन होता रहे। एरेशन अगर नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि ये जो ब्राउन कलर का फूल इसका हो जाएगा। मैंने बताया कि ब्राइट और अच्छी कलर का फूल होना चाहिए। पत्ती है तो वो एकदम हरी होनी चाहिए। सूखने के बाद जो कलर फ्रेश अवस्था में था, वही आपका सूखने के बाद होना चाहिए। तो उसके लिए हमें इस तरीके की जाली नुमा एक रेक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें प्रॉपर एरेशन होता रहे। ये सुखाने से पहले आपको शॉर्टनिंग का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये जैसे आपने फसल को सुखाया, या सूखने से पहले, सूखने के बाद, ये शॉर्टनिंग टेबल होती है। इसमें किसी भी तरीके का कूड़ा करकट अगर है तो सुखाने से पहले भी देख लेना चाहिए। कोई गंदगी है, कोई अलग स्पीसीज है, उसे हटा देना है। और फसल सूख जाए उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना होता है। ड्राइंग प्रोसेस मैंने बताया, वो जो जाली आपको दिखाई थी, इसी तरीके की रेक में इन जालियों को हमें बनवा लेना होता है और इसमें इसी तरीके से सुखाना होता है। एक तो जगह का इस्तेमाल हो जाता है ठीक से, कम जगह में आप ज्यादा हर्ब को सुखा सकते हैं। दूसरा, आपका जो क्वालिटी है हर्ब की, वो अच्छे से इसमें मेंटेन हो जाती है। कोई लागत इसमें बहुत ज्यादा किसान की नहीं आती है। अपने ही घर में, अपने ही घर में एक छोटे स्पेस में बहुत अच्छे से क्वालिटी हर्ब अच्छे से सुखा सकता है। तो फार्मर को हम यहाँ पे हमारे सेंटर पे कैसे सुखाना है वो भी बता रहे हैं। और उसके बाद वैल्यू एडिशन कैसे करना है, अपना ही हर्बल चाय, अपनी ही सीजनिंग या अपना ही कोई उत्पाद कैसे बनाए, वो भी हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ किसानों को बताते हैं। बहुत सारे क्लस्टर, बहुत सारे ग्रुप अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने वाला काम भी उत्तराखंड में करने लग गए हैं। ये मॉइस्चर लेवल है। सुखाने के बाद मॉइस्चर लेवल 10% रोजमेरी का, 12% लेमन ग्रास का, ऑरिगेनो, थाइम, लगभग जितनी भी हर्ब हैं इनका 10 से 12% मॉइस्चर लेवल इसका होता है। ये ड्राइंग रेशियो है। ड्राइंग रेशियो से ये पता पड़ता है कि ड्राइंग रेशियो किसी क्रॉप का अगर पता है तो पर्टिकुलर किसी क्रॉप का किसी मैन्युफैक्चरर ने जो रिक्वायरमेंट आपका करना है, उसमें रिटर्न में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, या आप जितने एरिया में, मतलब जितना भी अमाउंट में आप कल्टीवेशन ड्राई हर्ब तैयार करना चाह रहे हैं, वो अगर पता है तो आपको कितने एरिया में वो करना है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेशियो को आप ऐसे देखिए कि अगर आप 4 किलो फ्रेश हर्ब सुखाएंगे रोजमेरी की, तो वो 1 किलो रह जाएगी। लेमन ग्रास अगर 6 किलो सुखाएंगे तो 1 किलो वो बचेगी। तो ये ड्राइंग रेशियो है सारी की सारी, अलग अलग बेसिल का, कैमोमाइल का, स्पीयरमिंट का। रेशियो पता होना चाहिए तो आसानी हो जाती है कि हमें ड्राई हर्ब जो है, कितनी क्वांटिटी में हमें ड्राई हर्ब हमें चाहिए, उसके लिए कितना कल्टीवेशन हमें करना है। ये कुछ इमेज आपको दिखाई दे रही होंगी। रेक में भी इसे सुखाया जा सकता है और इस तरीके से हवा में बांध के भी सुखाया जा सकता है। ये टेम्परेचर रेंज है। फ्लावर 35 से 40, 40 से 45, सीड का 45 से 50 है, फ्लावर का 35 से 40 है, एरोमेटिक हर्ब्स का 38 से 42% है। रूट चूंकि सूखने में ज्यादा समय लेती है, तो टेम्परेचर भी इसका ज्यादा चाहिए होता है। ये कुछ एक इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देखिए कि उल्टा लटकाया हुआ है किसी हर्ब को और नीचे से उसमें फैन लगाया हुआ है। तो किसानों के लिए हमने इस एरिया में यहाँ पे उनके खेतों से खेती करने के बाद उन्हीं के एरिया में अ, खेती वो करें और वहीं पे ड्राई हर्ब कैसे अच्छे से कर पाए, उसके लिए हम लोगों ने तरीके जो इजाद किए हैं, उसमें सबसे अच्छा जो तरीका हमें मिला है वो तरीका आपका शेड ड्राई विद एयर मिला है, जिसमें क्वालिटी हर्ब तैयार हो जाती है। जो कलर चाहिए मैन्युफैक्चरर को किसी भी पर्टिकुलर हर्ब का, फूलों का या पत्तियों वाली जो फसलें होती हैं, आसानी से मिल जाता है। और उसमें एरोमा भी बहुत अच्छी रहती है, ऑयल परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहता है, और उसमें आपका केमिकल कंपाउंड भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हवा का इंतजाम कर लेना होता है। एक कमरा आप लीजिए, उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। और उसमें हर्ब्स के लिए, हर्ब सुखाने के लिए इस तरीके की जालीदार रेक आपको बना लेनी है, उसमें हर्ब डाल देनी है। और उसके बाद इसे आप आसानी से विद एयर अगर है तो बहुत अच्छा होता है। तो हवा अगर रहेगी तो बहुत अच्छे से सूख जाएगा। तो इसे आप और एक इसमें इसे आप समझ लीजिए कि अगर मैंने जो ह्यूमिडिटी की बात कर रहा था, ह्यूमिडिटी की वहां पे, यहाँ पे भी वो चीज इम्प्लीमेंट होगी कि अगर वेंटिलेशन नहीं है कमरे में, ड्राई हर्ब जहाँ पे आप कर रहे हैं शेड वाले एरिया में, वेंटिलेशन वहां अगर नहीं है, तो मान के चलिए कि जैसे 100 किलो आपने कोई पर्टिकुलर, आपने ऑरिगेनो या आपका मिंट या कोई भी बेसिल आपने सुखाने डाला हुआ है किसी कमरे में इन जालियों में,
तो सूखने के बाद जैसे मैंने बताया 6 किलो सूखने के बाद आपका 1 किलो बचता है। तो 100 किलो आपने डाला तो मान के चलिए कि आपका 70-80 करीब 70-80 किलो के करीब आप उसमें वाटर कंटेंट है। तो वाटर कंटेंट अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो उसी हॉल में घूमता रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और वो आपकी हर ब्लैक पड़ जाएगी। दूसरा, अगर आपने ये सरफेस एकदम फ्लैट सरफेस पर रख दिया, एरेशन नहीं हुई, तब भी आपकी पत्तियां काली पड़ जाएंगी। तो गुलाब का फूल जिसकी पेटल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हर्बल चाय में आजकल किया जा रहा है, वो भी अगर आप सुखाते हैं तो वो भी काला पड़ जाएगा। ये कुछ इंडिकेशन है जिसमें आप देखेंगे कि आपका शार्प जो स्टेम है आपका इजिली टूट जाना चाहिए सूखने के बाद। आपका ये फ्लावर हेड जो दिखाई दे रहा है सूखने के बाद बहुत अच्छे से ठोस हार्ड हो जाना चाहिए। नीचे का फ्लावर स्टॉक जो आपको दिखाई दे रहा है वो, और आपका ये जो फ्लावर हेड है बहुत अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। मोटी स्टेम है अगर, मोटा जड़ है अगर, तो वो इजिली टूट जाना चाहिए। और ये जो जितनी पत्तियां होती हैं सूखने के बाद 10 से 12% मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि एक कुरकुरापन होना चाहिए, क्रंचीनेस होनी चाहिए। मतलब एकदम जैसे साउंड जो है ना एकदम क्रंचीनेस वाला बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपका ये सूख चुका है। सूखने के बाद आपको ये स्टोरेज की बात आती है, तो स्टोरेज में आप ये देख लीजिए कि आपका जो स्टोरेज वाला एरिया है वो आपका ये मान के चलिए कि साफ सुथरा होना चाहिए, वेंटिलेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, धूप उसमें नहीं आनी चाहिए, हवा उसमें नहीं होनी चाहिए, डार्क एरिया होना चाहिए। बैग जो है जिसमें भी आप रख रहे हैं, बैग या कंटेनर में, उसमें भी किसी तरीके से हवा नहीं जानी चाहिए। वजह यह है कि जितने भी ये प्लांट होते हैं इसमें ऑयल पाया जाता है, मैंने बताया है ऑयल में केमिकल कंपाउंड होता है। धूप के टच में, हवा के टच में आते ही धीरे धीरे इसमें एरोमा भी जाने लगती है, ऑयल जाने लगता है, उसके कंपाउंड जाने लगते हैं। तो ये जितनी भी हर्ब्स होती हैं इससे जो भी आपका आपका सीजनिंग या जो भी इससे हर्बल चाय बनेगी या जो भी उत्पाद इससे बनने वाला है, तो वो आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर इस तरीके के उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं और किसानों को भी बहुत अच्छा रेट नहीं मिलता है। दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस. First one is control temperature. Temperature should be 25 degrees centigrade, and moisture level should be 60 percentage, 60 less than 60 percentage. Concrete floor or similar easy to clean floor covering opening close with wire netting against pest and domestic animals. Windows and wall paint should be white in color. Good air circulation in storage area. Temperature and humidity measuring device should be installed in storage area. Metal sleeves and rake should be used in storage area. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं जिनका हमें थोड़ा सा देखना होता है। इसके अलावा जो है तरीका, यही तरीका है कि आपको एयर टाइट बैग में या कंटेनर में रखना है और एयर टाइट किसी भी रूम में इसे रखना होता है। ये कुछ जैसे आप ये इकोनॉमिक्स है ऐसे आप समझ लिए। जैसे कि रोजमेरी है, रोजमेरी में आपका सूखने ये जो कॉमर्शियल पार्ट है इसका सूखी पत्ती है, ऑयल तो है ही, सूखी पत्ती भी है। फर्स्ट ईयर जो इसका 1 हेक्टेयर में आप ये मान के चलिए 9400 रुपये इसका खर्च होता है। सॉरी, 1 हेक्टेयर नहीं, यहाँ पे जो पहाड़ों पे जो चलता है वो 200 मीटर स्क्वायर, मतलब जो सबसे छोटी इकाई है मेजरमेंट की जमीन की यहाँ पे, वो 200 स्क्वायर मीटर है, जिसे नाली बोलते हैं यहाँ पे। तो 9,9400 खर्च होगा, दूसरी साल 5,400 खर्च होगा, दूसरी तीसरी साल भी 5,400 खर्च होगा। तो 3 सालों में 20,200 रुपये के समथिंग खर्च होगा। और 3 सालों में ये मान के चलिए कि ड्राई हर्ब 200 स्क्वायर मीटर एरिया में छोटे से टुकड़े में 60 किलो के करीब आप ड्राई हर्ब तैयार कर सकते हैं। और जो रेट चल रहा है उसका अभी मार्केट में 250 रुपये केजी चल रहा है। और जो रिटर्न मिलता है ये मान के चलिए कि 45,000 उसमें रिटर्न मिलता है। नेट रिटर्न आपका 24,800 रुपये 3 साल का एवरेज है जो मिलता है एक छोटे से टुकड़े से किसान को। तो ये इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है अलग अलग। ये कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, जैसे फर्स्ट इमेज आप देखेंगे रोजमेरी की है, सूखने के बाद ये कलर उसका होना चाहिए। दिखाई दे रहा होगा इमेज में आपको। आपके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर, राइट साइड में आपको उसका ड्राई कलर। तो देखिए लगभग सूखने के बाद वही कलर उसका होना चाहिए। तो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है किसानों के लिए हो सकता है जो इजिली जो खेती कर सकें मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट की। ऐसे स्टूडेंट
के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है जो हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं। रोजमेरी, जिरेनियम, लेवेंडर, ऐसे प्लांट को वो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लिख देते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं, नंबर अच्छे मिल जाते हैं, उन्हें पता नहीं पड़ता है कि ये प्लांट है कौन से, इसका क्या यूज है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है ये। और अगर किसी को अभी कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। और सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसमें कुछ अगर एक वीडियो अगर प्ले हो जाए तो वो हम प्ले कर सकते हैं और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा अच्छे से अच्छे डेफिनेटली से। डेफिनेटली, प्लीज। अ, मैं ट्राई करता हूँ अगर हो जाता जी है। जी जी। ये रोजमेरी का कल्टीवेशन कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कटाई करते हैं, कैसे उसका ड्राई हर्ब किया जा रहा है, कैसे उसका ऑयल निकाला जाता है, ये सेंटर का ही कुछ वीडियो है छोटे छोटे, कैसे प्रोपोगेशन होता है, वो सारा कुछ इसमें दिखाई देगा। तो इसे एक बार देख लीजिए आप लोग। Sorry to interrupt, sir, but there is no visual on screen. I think there is some network issue. आ, इसे मुझे लग रहा है अभी अभी आ रही है आवाज, दिख रहा है। Yes, yes, sir. इसमें साउंड नहीं है क्या सर? कुछ इशू लगता है। इसमें वीडियो में क्या एकदम म्यूट चल रहा है, मतलब अच्छा, स्मूथ नहीं, इसमें कोई आवाज नहीं आ रही मतलब। वो कुछ इशू है मुझे लग रहा है, इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है।
फिर कभी जुड़ा जाएगा तो जरूर दिखाते हैं इसे ठीक से सर। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ठीक। इसके अलावा किसी को और डिटेल में अगर जानना है कैसे उसमें डिस्टिलेशन होता है, कैसे इसका जो जीसी है वो किया जाता है, केमिकल कंपाउंड का यूज क्या क्या है, तो वो जरूर जुड़ सकते हैं हमसे। किसी को कांटेक्ट डिटेल चाहिए, कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो वो सर से आप ले सकते हैं आप लोग, वो किया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। और अगर कुछ जानना चाह रहा है, कोई अगर पार्टिसिपेंट पूछना चाह रहा है तो जरूर। Thank you, sir, for taking your time to share your insights on such an important and valuable topic, medicinal and aromatic plant cultivation, modern agrotechnology, and post-harvest innovations, covering in detail various herbs of hilly region, harvesting and utilization of these herbs, and what are the requirements to produce quality herbs, quality parameters, and various harvesting tools. Thank you so much, sir. There are some questions from our participants. Hmm. Uh, One question from Meenal Dubey. Sir, which herbs require less irrigation or can be grown in dry land areas? अ, इसका जो मैंने बताया, मैं बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे हम लोग अभी हिली एरिया में, उत्तराखंड का जो करीब 70 से 75 80% जो एरिया है हिली एरिया है, और उसमें 70% एरिया है जो रेन फेड फार्मिंग ही कर रहा है। बहुत ज्यादा कमी है पानी की, और पिछले कुछ अनसर्टिनिटी ज्यादा अभी बनी हुई है। किसी साल पानी गिरता है, किसी साल पानी नहीं गिरता है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे क्रॉप हम लोग किसानों को बताएं जो इजिली ग्रो हो जाए रेन फेड फार्मिंग में। तो हम लोग यहाँ पे आपका लेमन ग्रास जो है बिल्कुल पानी के बिना, मतलब रेन फेड फार्मिंग में ही इजीली ग्रो हो सकता है। रोजमेरी को इसी तरीके से लगाया जा सकता है। मोस्टली ऐसे प्लांट हम लोग देखते हैं जो पेरेनियल नेचर के हों, एक बार हमने फील्ड में लगा दिए, 10 से 12 साल सेम प्लांट से एंड में आप अपना बार बार आपको प्लांटिंग नहीं करनी है, तो आप एक बार लगाइए और आप 10 12 साल तक सेम प्लांट से साल में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार तो कटाई आप उसमें ले लीजिए। तो उसके लिए लेमन ग्रास है, रोजमेरी है, एलोवेरा को भी 3 से 4 साल लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको अश्वगंधा भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आसानी से कम पानी में ही इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। Thank you, sir. There is one more question from Shivam Kumar गुलाब है, Lal. जैसे गुलाब जो है वो भी रेनफेड फार्मिंग में आसानी से लगाया जा सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो क्रॉप है उनमें पानी चाहिए होता है, जैसे कैमोमाइल है आपका, आपका ऑरिगेनो है, थाइम है। इसमें वाटर कंटेंट इनके पार्ट, इनके एरियल पार्ट में ज्यादा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, तो प्लांट को पानी चाहिए होता है। पेरेनियल नेचर वाले जितने भी प्लांट हैं इजिली इन्हें वर्षा आधारित खेती में उगाया जा सकता है। तो यही आंसर हो सकता है इसका। Thank you, sir. जी। There is one more question from Shivam Kumar Lal. What is the major advantage of growing medicinal plants like these over the non-medicinal like rice, wheat, vegetable, etc.? अगर हम बात करें कि इसका जो फायदा है, दो करीब करीब मान के चलिए कि फ्रूट और आपका वेजिटेबल और आपका सीरियल क्रॉप जितनी भी है, अगर हम सही से ट्रेनिंग लेके अगर कल्टीवेशन करते हैं इन प्लांट का, जो भी मैंने अभी प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए, जैसे अभी गुलाब की बात कर रहे हैं, गुलाब की कल्टीवेशन आप करिए और वैल्यू एडिशन उसमें ऐड कर दीजिए। उसका गुलाब जल बनाने के लिए हम लोग छोटी सी यूनिट देते हैं, या सजेस्ट करते हैं, बहुत सस्ती होती है वो मशीन। आप ये मान के चलिए कि आपने थोड़े से एरिया में भी आपने गुलाब लगाया हुआ है, तो उसकी पेटल्स को आपको तोड़ना है, गुलाब जल बना लेना है। तो वैल्यू एडिशन आपको करना होगा, और ये मान के चलिए कि रॉ मटेरियल भी दे देते हैं अगर आप किसी भी खरीदार को, तो ये मान के चलिए कि दो दुगना फायदा तो होता ही है। और वैल्यू एडिशन अगर आप कर दे रहे हैं, तो मैंने बताया कि यहाँ पे क्लस्टर बना के हम लोग वैल्यू एडिशन का काम भी हम किसानों को यहाँ बता रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन अगर कर देते हैं, तो ये मान के चलिए कि 200 से 250 रुपए में जो रोजमेरी रॉ मटेरियल ड्राई हर्ब जो जा रहा है किसी मैन्युफैक्चरर को, किसी किसान के द्वारा, तो ये मान के चलिए कि उसका जो रिटेल प्राइस है 2000 तक चला जाता है उसका वैल्यू ऐड कर देने से। ड्राई हर्ब करना है, ड्राई हर्ब करने के बाद उसका हर्बल चाय बहुत आसानी से उसका बनाया जा सकता है, उसका सीजनिंग बनाया जा सकता है, पैकेज उसे अच्छा से करना होता है, अच्छी सी वैल्यू एडिशन उसमें करके अच्छी सी पैकेट में पैक करके
हम लोग यहाँ अपना जो टेक्नोलॉजी है वो उन्हें बताते हैं, और अच्छा सा एक क्लस्टर बना के अपना ब्रांडिंग कराने में भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे ये क्लस्टर्स रखते हैं इन उत्पादों को, और बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो वैल्यू एडिशन करके अगर आप बेचते हैं, या फिर वैल्यू ऐड करके आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और बहुत सारे यूथ अभी इसका कल्टीवेशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इंटरनेट का एक्सेस अभी बहुत ज्यादा है। लोग यूजर इसके लगातार बढ़ रहे हैं, और जितनी भी ये हर्ब्स मैंने बताई जो कि यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पे लाके यूज करी जा रही हैं, यूजर जो है इसके हर्बल चाय वाले यूजर हैं इसके, या फिर मैंने बताया कि कुकिंग में इसका ऑरिगेनो, आपका मर्जोरम है, ऑरिगेनो है, थाइम है, आपका बेसिल है। ये जो कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो इम्पोर्ट करके मंगाना पड़ रहा है। अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि इजिली अभी यहाँ पे हम लोग ग्रो करें, और जितने भी यूजर हैं उन्हें हम इजिली दे पाएं। तो अभी आसानी से हो भी रहा है, और कल्टीवेशन धीरे धीरे इसका बढ़ा भी है अभी। तो किया जा सकता है, फायदा है, इसकी खेती में बहुत ज्यादा फायदा है। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है सपना से। सर, इनकी मार्केट कैसे पता करें, उगाने के बाद बेचे कैसे? उसके लिए मैंने बताया कि सीमैप से ही आप जितनी भी रिलीज वैरायटी है हमारी उन्हीं को लीजिए। मैन्युफैक्चरर को सबको पता है कि पर्टिकुलर किसी स्पीसीज की क्या वैरायटी सीमैप ने रिलीज की हुई है। और अभी मैंने जैसे बताया कि रोजमेरी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो भी है हमारे उत्तराखंड में, तो वो ऐसा जो रेनफेड एरिया है वहाँ पे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स को प्रमोट कर रही है। तो सीमैप की वो हेल्प भी ले रही है। और इसमें खरीदार वाला जो एक पहलू रह जाता है कि किसान जो है खरीदारों तक कैसे पहुंचे, तो वो सीमैप के माध्यम से पहुंच सकता है। मैंने बताया कि रोजमेरी कल्टीवेशन हम लोगों ने यहाँ पे क्लस्टर बना के शुरू कराया है। और खरीदार जो हैं जो फॉरेन से इंपोर्ट करके यहाँ मंगा रहे हैं, उनका डायरेक्ट यहाँ पे एग्रीमेंट करा के हम लोग कल्टीवेशन कराने वाला काम कर रहे हैं। तो लिटरेचर है हमारे पास जिसमें खरीदार हमसे जो जुड़ते हैं वो लिटरेचर फॉर्म में हम किसानों को प्रोवाइड करा देते हैं। और अभी ये जो हर्ब्स हैं, चैलेंज ये है कि इनकी कल्टीवेशन को बढ़ाना है। मार्केटिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरी समझ में, मार्केटिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। उत्तराखंड में अगर हम किसानों की बात करें कि अगर इंडिविजुअल कोई फार्मर कल्टीवेशन करता है, तब दिक्कत ये आती है किसान को कि वो जो रॉ मटेरियल तैयार करेगा उसका वो बहुत कम अमाउंट में होगा, तो इशू रहता है, नहीं बिक पाता है उसका। तो हम लोग सजेस्ट ये करते हैं कि आप ग्रुप बनाइए और ग्रुप में कल्टीवेशन करिए, तो आपके पास खरीदार आसानी से पहुंच सकता है। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, CSIR एरोमा मिशन अभी चल रहा है पूरे इंडिया में। एरोमा मिशन में जितने भी एरोमेटिक प्लांट जो हम ग्रो कर सकते हैं, उसमें सिट्रोनेला है, पामारोजा है, गुलाब है, लेमन ग्रास है, इसकी लेवेंडर जैसे मैंने बताया, तो इसकी खेती हम लोगों ने शुरू कराई। जम्बू का जैसे ग्रीन ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से आप सर्च करेंगे तो देखिए उसमें आपको मिलेगा। एरोमा मिशन ने ही वहाँ पे वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधारी, खरीदार वहां तक हमने खुद पहुंचाए। छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो शेड्यूल्ड ट्राइबल जो एरिया है वहां पे लेमन ग्रास की खेती से हमने उन लोगों को जोड़ा, वहां के किसानों को। खेती वो लोग करते ही नहीं थे, तो खेती करते नहीं थे तो जमीनें ऐसी पड़ी हुई थी उनकी, कल्टीवेशन फॉर्म में नहीं था, तो कल्टीवेशन फॉर्म में लाए। और वर्षा बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं था सिंचाई का, तो रेनफेड फार्मिंग में ही वो लोग लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। खरीदारों को वहां पहुंचाया, और लेमन ग्रास का तेल निकालने के लिए वहां डिस्टिलेशन यूनिट भी दी गई है एरोमा मिशन में, और कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है अभी। उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, खरीदार और किसान वहाँ सीधे जुड़े हुए हैं और खेती कर रहे हैं, और बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन उन लोगों की हो गई है अभी। Sir, as previously asked by Shivam Kumar Lal, he again asked, it means that we need direct link to the industry for running these cultivation for gaining profit that is not needed in other crops like cereals, vegetables, etc. If so, then do these plants good in context to the rural India? इसका आंसर यही हो सकता है कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमें कल्टीवेशन जो करना है, कल्टीवेशन में प्रॉपर हमें ट्रेनिंग ले लेनी है ठीक से। डायरेक्ट आप जुड़ के भी खेती कर सकते हैं, और हमसे भी जुड़ के आप डायरेक्ट खेती कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट खेती करने के बाद फाइनली जो लिंक कराने वाला काम है वो हम लोग भी कराते हैं। और डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है।
Thank you, sir. Thank you, sir, for your engaging and insightful presentation. I think that's all questions from participants. And I'm confident that participants have greatly benefited from your extensive expertise. We sincerely appreciate your willingness to share your profound knowledge with us. Wishing you continued success in your path. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Now, Thank you, madam. as we Thank you. conclude tonight's program, thank you so much, sir. As we conclude tonight's program, I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed presenters. Your sharp insights and extensive experience have been truly inspiring, enriching the knowledge of all participants. It has been an honor to learn from you, sir. We extend our best wishes for your future endeavors. I also thank our participants for their attentiveness and active engagement throughout the sessions. On behalf of Vital Biotech, the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Raipur, the University of Agricultural Sciences, Raichur, Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, Powers Park, Hyderabad, Telangana, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to our esteemed guests, distinguished speakers, and enthusiastic participants for joining the Study One Days Winter School program. Your patience, active engagement, and attentiveness throughout the program has been truly admirable. Thank you once again for your invaluable contributions. Have a delightful evening. Thank you so much.